students. Today I am going to study about the pH scale and its importance of everyday lives. In previous video I have discussed about the acid and base. Today I will explain about the pH scales so that these slides represented a different range of the pH. Here we will discuss about the uses of pH and definition of pH so that the pH scale can also help us classify solution as acid or bases. Next, the important definition is that pH is a measure of the amount of hydrogen ion in a solution. That means potential hydrogen, that is power of hydrogen also. The more the hydrogen ions, lower the pH, the more acidic the solution. So that here we discuss about the value of pH. If the pH less than 7, then the substances will be acidic. pH is greater than 7, then the substances will be base. pH is equal to 7, then the substances will be neutral. pH is 0, then the substances is very acid. We discuss about the universal indicators. Universal indicator is also called the pH paper. About knowing the concentration of hydrogen ions or OH ions in a solution, we use of a several indicators. Universal indicators show different color at different concentration of hydrogen ion in a solution. हाइड्रोजन आयन डिफरेंट सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अलग अलग होंगे तो वहाँ पर कलर भी अलग अलग होगा. दिस स्लाइड रिप्रेजेंटेड द डिफरेंट कलर्स ऑफ द डिफरेंट pH रेंज. दीज आर आल्सो universal indicators. pH papers indicate here. Now the important topic is that importance of pH in everyday life. हमारे डेली लाइफ में pH का क्या क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे. pH as plants and animals are pH sensitive. Our body work efficiency pH 7.0 to 7.8 and industrial area pH of rainwater become less than due to the dissociation of some acid gases like SO2 and NO2. The mixture of SO2 and Na2 is known as acid rain, and the pH of rainwater is less than 5.6 is called acid rain. जब acid rains हमारे ponds या lakes and the river में होते हैं तो देयर आर द डिफ़िकल्ट फॉर द सर्वाइव ऑफ द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन पॉन्ड्स लैक एक्सेट्रा. pH in our digestive systems. हमारा जो बॉडी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स होते हैं और वो हेल्प करते हैं डाइजेशन इन आवर फूड. हमारे जो फूड है उसको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं. अगर यही HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाए इन आवर स्टोमक, इट कॉजेस पेन एंड इरेशन इन स्टोमक. और उससे क्या होता है, पेन होते हैं और इरेशन होते हैं. चूँकि पेट में मोर एसिड बनने के कारण पेन और इरेशन होने की वजह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिटी. और इस एसिडिटी को कम करने के लिए हम या तो इनो या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया डिफरेंट टाइप्स के डाइजेस्ट एंटासिड एक्सेट्रा का यूज़ करते हैं. और ये जो इनो है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, एंटासिड है, ये बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं जो हमारे एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं. इसीलिए ये सब चीज़ जितने भी हमने मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम बाइकार्बोनेट एक्सेट्रा यूज्ड फॉर द decreases of the acidity in our stomach. Next, here this slide represented some example of antacid like that. Number 1, milk of magnesia.
The formula MgOH whole twice, its chemical name magnesium hydroxide, baking soda, ENO, antacid, syrup, tablet, etc. used for the decreasement of the antacid. इसके अलावा this figure is also for the forming of the acidity in our stomachs and used for the decreasement of the acidity for antacids. Now the most important character is the pH in tooth decay, so that the pH is also help for the decreases of the acidity which are formed in our mouth. हमारे कभी कभी ऐसा होते हैं कि हमारे टीथ होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जब pH की वैल्यू लेस देन 5.5 हो जाता है तभी हमारा टूथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाते हैं. एक्चुअली ऐसा किस लिए होता है? देयर आर द मैनी एसिडिक सॉल्यूशन आर फाउंड इन आवर माउथ, और इस कारण माउथ में एसिडिक कैरेक्टर्स बन जाते हैं, और एसिडिक कैरेक्टर्स बनने के कारण हमारे जो टीथ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं और टीथ डीके होना शुरू हो जाता है. उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ब्रश करते हैं. हमें एडवाइस किया जाता है कि 2 टाइम्स आप ब्रश करेंगे. क्योंकि ब्रश इसलिए का बताया जाता है बिकॉज जो कॉलगेट होता है या जो टूथपेस्ट होता है वो बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं, और जो हमारे माउथ में एसिडिक कैरेक्टर्स बना है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे वो टूथ डीके होने से बच जाते हैं. Here there are the disease as represented in our teeth. And then another important topics is that bee sting. कभी कभी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में कि बी स्टिंग में कौन से एसिड होते हैं. कभी कभी आपने देखा जो बरैया है या बहुत सारे एंट है, ये सब काटने से दर्द होता है, पेन होता है. एक्चुअली ये होने का मेन कारण क्या है? इट रीज़न इज़ दैट बी सीटिंग कंटेन्स मेथेनोइक एसिड्स. एक्चुअली जो बी सीटिंग्स होते हैं उसमें मेथेनोइक एसिड्स होते हैं जिसका फार्मूला HCOH होते हैं. ऐसे ही नेटल लिप्स होते हैं. नेटल लिप्स जब कहीं लग जाते हैं तब भी दर्द होते हैं, उसमें भी मेथेनोइक एसिड पाए जाते हैं. और चूंकि जब ये एसिड को इंजेक्ट करते हैं इन आवर बॉडी तो हमें पेन होता है, तो इस दर्द को कम करने के लिए हम उस पर बेकिंग सोडा या अदर कोई भी बेसिक चीज़ हम क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं. और रब करने के बाद वो जो पेन पोर्शन है वो डिक्रीजिंग हो जाते हैं बिकॉज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हेयर दिस स्लाइड रिप्रेजेंटेड द सम pH वैल्यू, सो दैट स्टूडेंट्स इसको आप केयरफुली देखिएगा और इसको लर्न भी कर लीजिएगा. सम क्वेश्चन आर अराइजिंग दिस स्लाइड्स आल्सो. सो दैट थैंक यू, हैव ए नाइस डे. আর নাই খুশি দেখতে একটাই হয়ে ये আমি ধুই দিলাম রাইস বানানোর জন্য ওই তো ওকে আর লোনার আর পাইস না.